ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ ಮಾಡ್ತದ ಅಂದ. Hello, am I audible now? Yes, Saad, sir. Saad, can you hear me? Saad, Rahat. Check it. So last time we were discussing few questions of science and technology, and as I told you that in 2019 there were many questions related to the what you can say science and technology. So we have discussed about question number 95. Question number 95 is that question number 95. 1 second. We have discussed about the variable technology, right? In the context of wearable technology, which of the following tasks is or are accomplished by wearable devices? So that we have discussed. So your voice is cracking. Is it okay now? Hello, is it okay? Yes, sir. Hello, am I audible now? Hello, Rahat, am I audible? Hello, is it okay now? Can you all hear me? Yes, sir. Okay, fine. Okay, so last time we have discussed about the 2019 question, that is in the context of wearable technology, and we have seen that 1, 2, 3 is the correct answer, right? So now here see we few more questions related to the science and technology, which is mentioned here, that is about the genetics, right? So here there is one question that with reference to the recent development in science, see the question also says that you are expected to know what are the recent development in science, right? So with reference to recent development in science, which one of the following statement is not correct? Now recent developments in the science, which of the following statement is not correct, that has been asked. So option here, that functional chromosomes can be created by joining segments of DNA taken from cells of different species. Now what is expected that every year there is at least one question related to the genetic engineering. If you go through 2014, 15, 16, 17, 18 question paper, we can observe that there is at least one question from either the basics of the genetic engineering or
the current developments in the genetic engineering, right? So the question here is that the functional chromosomes can be created by joining segments of DNA taken from cells of different species. Now here basic thing is that here the trigger word. Can anybody tell me what could be the trigger word or what could be the likely state or word in the statement which may make this statement wrong? If anyone has studied the basics of what you can say the genetics or basics of science, you may be able to find out what could be the likely mistake in the statement. Yes, Mitali, can you tell me what could be the likely mistake in the statement? So different cells, species, sorry. Right. So functional chromosomes can be created by joining segments of DNA from different species. तो ये अब तक उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ. Yes, we have been able to create functional chromosomes by joining what you can say the DNAs of same species, but not from different species. समझ में आ गया? तो ये यहाँ पर ये स्टेटमेंट में अगर आप देखोगे तो बेसिकली जब एग्जाम में कुछ नहीं है, एग्जाम में जस्ट कीप योर टेम्परामेंट कूल, जस्ट रीड द स्टेटमेंट केयरफुली. आपको वो स्टेटमेंट जब पढ़ोगे ना उस समय में आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या लाइकली मिस्टेक है, क्या रॉन्ग हो सकता है. Right? So now here we can see that second statement, pieces of artificial functional DNA can be created in laboratory. So what do you think? इतना डेवलपमेंट हुआ है अभी फिलहाल जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड. यहाँ पर क्या पूछा है कि which is not correct पूछा है ना. तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है that pieces of artificial functional DNA can be created in laboratory. तो ये आर्टिफिशियल डीएनए लैबोरेटरी में बनाया जा सकता है नहीं जा सकता अब तक जितना भी डेवलपमेंट हुआ है जेनेटिक on that basis. So what do you think? Is it possible or not? It has become Sir, possible. it's possible. Possible. अभी आपको पता है we are creating it, right? ठीक है. See, next statement हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है. That a piece of DNA taken out from an animal cell can be made to replicate outside a living cell in a laboratory. A piece of DNA taken out from an animal cell can be made to replicate outside a living cell in laboratory. ये भी possible हो चुका है. There are many scientists who have developed this technology. Last है, cells taken out from plants and animals can be made undergo cell division in laboratory petri dishes. Yes, आपने पढ़ा होगा सब लोगों ने, ये आपको पता होगा कि ये possible है. अब यहाँ पे जिसका बेसिक अच्छा है, बेसिक साइंस जिसका अच्छा है या जिसने साइंस से ग्रेजुएशन किया है, तो those people can be able to find out the answer of this question. अगर आर्ट्स वाला है, suppose if someone is from the arts background, then obviously this question may be a bit difficult for them. So what should you do in such type of questions? अभी मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता है अबाउट द जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो आपको बेसिक क्या करना पड़ेगा, बेसिक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा. और रिसेंट अगर कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इन टर्म्स ऑफ DNAs और genes or slicing, there are many questions. We will see in 2019 also, in 2018 also there were questions related to just like gene therapy, or we can also see like Manorama yearbook में मैंने आपको बताया है कि you have to read gene therapy, and also there is a specific topic in this year's Manorama yearbook about the genetic engineering or recent developments in the genetic engineering. अगर यहाँ नहीं है 2020 में नहीं है, then you have to read 2019 and 2020 Manorama yearbook where there is what you can say that information is given related to the recent developments in the genetic engineering. राइट? तो अभी देखिए एग्जाम में पढ़कर जाइए, अगर बेसिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन निकलते हैं तो निकालिए, अदरवाइज अगर डिफिकल्ट लग रहा है स्किप सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. फाइन. सो व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी? हियर आई कैन सिलेक्ट. पहले स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही मुझे पता चला था कि ये सेल्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज जो लिखा हुआ यही है. तो क्वेश्चन क्या पूछा है, नॉट करेक्ट क्या पूछा है, तो आई एम वेरी श्योर कि ये डिफरेंट स्पीसीज से नहीं हो सकता है. So I will mark A and I will go to directly next question. I will not read B, I will not read C, or I will not read D because I'm very sure that the first statement is wrong. ये समझ में आ रहा है? अब ये तभी आप कर सकते हो when you, जब आपका बेसिक अच्छे से होगा और when you are 100% sure that the functional chromosomes cannot be created from the cells of different species. ये अगर 100% sure हो तो you don't need to read B, C and D. Is it clear? समझ में आ रहा है what I am trying to say about this particular question? Yes, sir. ठीक है. Then going to the next question. Consider the following statement, digital signature. Then obviously digital signature अभी पिछले 2-3 साल से यूज किया जा रहा है. तो ये डिजिटल सिग्नेचर क्या है ये पूछा गया. डिजिटल सिग्नेचर कहाँ यूज होता है पूछा है.
अब वैसे तो ऑप्शन में मैंने बताया था, अगर 1 2 3 होता है तो क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, याद है 1 जैनब? 2 3 जो होता है। 1 2 3 इज करेक्ट, राइट? तो बट स्टिल वी विल कंफर्म, फिर भी हम क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। अब ये डिजिटल सिग्नेचर क्या है? एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूइंग, ऑब्वियसली ये सही होगा। any देखिए ये टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अब इसके लिए भी यू डोंट नीड टू व्हाट यू कैन रीड एनी क्लास। आप नॉर्मली अगर आप एक अवेयर पर्सन हो, अगर आपने ग्रेजुएशन अच्छे से किया है और आपके आसपास क्या हो रहा है या अगर आपको पता है, तो आप यू कैन इजीली से दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। किसी को डाउट है, किसी को ऐसे लग रहा है कि ये स्टेटमेंट नहीं, बिल्कुल भी मुझे पता नहीं है कि डिजिटल सिग्नेचर इसी को कहते हैं, ऐसा कोई है आप लोगों में से? ऑल ऑफ यू एग्री दैट फर्स्ट No, स्टेटमेंट sir. इज करेक्ट? हाँ, यस। No, sir, it's not correct. You see, an electronic record that identifies the certifying authority issuing it. ठीक है? Second, I will read it out. Second statement, used to serve as a proof of identity of an individual to access information or server or internet. Yes, sir. Why do you think that first statement is wrong? Hello? Sir, why the first statement is wrong? Hello? Am I audible to you? ठीक है, चलिए। Hello? Am I audible now? Yes, sir, you are audible. Okay, Yes, fine. sir. Okay, so why the first statement is wrong? I don't think first statement is wrong, but still we'll try to find out the answer. Second statement is also correct as per me, and even third statement, that is an electronic method of signing an electronic document and ensuring that the original content is not unchanged. Anyone is having official answer key of this question? Just check it out. What is the answer of this question? Question number 94 in official answer key. Mitali, I guess you have, right? Answer key Sir, of official answer is C. D. That is 1 2 3, right? Sir, I have no, sir. No, sir. It's C. C for Chennai. Three only. Okay. Okay. Just Yes, tell sir. me why the first statement and second statement is wrong. Have you checked it out? हेलो, ठीक है, चलिए। कभी कभार होता है, आई टोल्ड यू दैट आउट ऑफ फ्यू क्वेश्चंस एक आध दूसरा सवाल आंसर रॉन्ग होता है, ठीक है। नाउ आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 95 वी हैव डिस्कस्ड। ओके, नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन ऑन RNA interference technology. RNA interference technology has gained popularity in the last few years. So this again, obviously this question is related to the genetic engineering and technology which is used in the genetic engineering. So RNAi, that is RNA interference technology, has gained popularity in the last few years. तो अब ये सवाल देखने के बाद में आपको ये पता चलना चाहिए कि इस तरीके की जो नए जो टेक्नोलॉजी आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से, वो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है। तो अभी सर्च क्या करोगे आप? recent technology in genetic engineering, recent technology which were there in the news, which were there in what I can say popular in the genetic engineering। ये गूगल में सर्च करो, बहुत सारे आपको वो टेक्नोलॉजीज मिलेंगे और उससे रिलेटेड बेसिक नोट्स आपको बनाना है। अब ये देखिए, व्हाट इज द व्हाई इट इज गेनिंग पॉपुलैरिटी, वो पूछा है। फर्स्ट पहला है स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपीज। तो अब ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था मनोरमा ईयरबुक में जीन थेरेपी आपको करना है, याद है? सो जीन थेरेपी ये इस साल भी दिया है मनोरमा ईयरबुक में, पिछले साल भी दिया है, उसके पहले भी दिया हुआ है। अगर आपने वो मनोरमा ईयरबुक से अगर वो जीन थेरेपी वाला अगर चैप्टर आप पढ़े होते तो दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर। हम यहाँ पर एक टर्म यूज किया है, जीन साइलेंसिंग। तो आज आप जाकर चेक करोगे कि ये जीन साइलेंसिंग होता क्या है। आप लोगों में से किसी को पता है? एनीवन नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन साइलेंसिंग? हेलो, एनीवन फ्रॉम No, साइंस sir. बैकग्राउंड और बायोटेक्नोलॉजी? किसी को नहीं पता है जीन साइलेंसिंग मतलब क्या हो सकता है? नो वन नोस? ठीक है, गेस तो कर सकते हो जितना पता है उसके बेसिस पे। दो वर्ड है यहाँ पर, एक है जीन और एक है साइलेंस। तो जीन को साइलेंस करना,
So it might be some modification in the gene. तो मॉडिफिकेशन यस, बट मॉडिफिकेशन में भी अलग अलग तरीके हैं, तो उसमें साइलेंसिंग करना मतलब एग्जैक्टली क्या? सर उसका एक्सप्रेशन को इनहिबिट करना। राइट। फॉर एग्जांपल सपोज अभी हमको पता है कि कोई भी एक जो वेजिटेबल होता है वो वेजिटेबल की अपनी एक खुद की एक लाइफ होती है, राइट? तो लाइफ मतलब क्या कि वो कितने समय तक या कितने टाइम पीरियड तक वो क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा, उसका भी एक कोड है, वो जीन में मेंशन किया गया, समझ में आ गया? एंड सपोज अगर आपको एक वेजिटेबल का जो शेल्फ लाइफ है उसको अगर बढ़ाना है तो आप क्या करोगे? वो जो जीन, द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू कैन से डिक्रीजिंग द लाइफ ऑफ द वेजिटेबल, उसको साइलेंस करोगे, am I right? या फिर सपोज अभी फॉर एग्जांपल कैसे हो जाएगा, फॉर एग्जांपल सपोज यू ऑल ऑफ यू नो दैट कि जो ह्यूमन बाल्डनेस जो होता है, जो बाल्डनेस होता है सर पे जो बाल जो निकलते हैं उसके लिए भी जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज बहुत सारे जीन्स में ये मेंशन किया, मतलब जीन्स में ये होता है कि एट व्हाट एज द व्हाट यू कैन से द हेयर शुड फॉल, दैट इज ऑलरेडी मेंशनड इन द, दैट इज ऑलरेडी कोडेड इन द जीन। अगर सब हम उसको अगर साइलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? उस समय में जो कोड किया हुआ है उस समय में वो बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, am I right? तो इसको कहा जाता है जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग मतलब क्या कि जो भी कोई भी जो एक्टिविटी होती है वो जीन्स करवाता है, तो उसको अगर हम साइलेंस करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? वो थेरेपी, दैट इज कॉल्ड एज थेरेपी, राइट? सो आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए में इंटरफेरेंस करना, so it is used in developing gene silencing therapy. Second, it can be used in developing therapies for the treatment of sorry, cancer. Third, it can be used to develop hormone replacement therapy. It can be used to produce crop plants that are resistant to viral pathogens. अब मुझे बताइए कि जिसके लिए आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि आरएनएआई टेक्नोलॉजी कहाँ यूज की जाती है। तो ये why I am asking you to read Manorama yearbook, because all such type of recent technologies which there in the news has been what you can say given into the Manorama yearbook. समझ में आ गया? तो मनोरमा ईयरबुक पढ़ते वक्त क्या करना है, क्या पढ़ना है और क्या चीजें ध्यान में रखनी है, समझ में आ गई आप लोगों को? Yes, sir. What is the answer of this question? Just check it out. Sat, what is the answer of this question? अपना official answer है Sir, A. A, that is 1, 2 and 4 only, right? Yes, 3 sir. नहीं है। यहाँ पर देखो कि it can be used to develop the hormone replacement therapy. तो हार्मोन रिप्लेसमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है, दैट इज बाय द आंसर इज 1, 2 and 4. बट एनीवेज यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है, तो इस तरीके के स्टेटमेंट में जब तक आपको 100% पता नहीं है तब तक आप इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। यू नीड टू नो स्पेसिफिकली व्हाट इज दैट आरएनए टेक्नोलॉजी एंड वेयर इट इज एग्जैक्टली बीइंग यूज्ड। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97। sir. Question number 97. Recently, scientists observed the merger of giant black holes billions of light years away from the Earth. What is the significance of this observation? आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस में पिछले ही वीक में इससे रिलेटेड 2 आर्टिकल आए थे। सौरभ, याद है जब मैं लाइव सेशन ले रहा हूँ न्यूज़पेपर का तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि वो आर्टिकल पढ़ना है। Yes, sir. राइट? अब ये जो ऐसे जो आर्टिकल पिछले साल भी आए थे, जब आर्टिकल आया था उस समय मैंने स्टूडेंट को बताया था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि रिसेंटली साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व्ड द मर्जर ऑफ 2 जायंट ब्लैक होल्स बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर और एक ध्यान में रखिए कि एवरी ईयर यूपीएससी डू आस्क क्वेश्चंस related, one question related to the such type of research which is going on in the world, especially related to the origin of universe. Origin of universe से related बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, तो आप सिंपली गूगल में क्या सर्च करोगे? रिसेंट रिसर्च रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिग्स बोसॉन को आपको पता होगा, न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट का आपको पता होगा, या फिर गॉड्स पार्टिकल का एक रिसर्च चल रहा है। तो ये जो बेसिक ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, लेकिन पिछले साल ये जायंट ब्लैक होल्स जो थे उसका फोटोग्राफ पता हुआ था। अभी पिछले 2-3 दिन पहले भी इंडियन एक्सप्रेस में 2 आर्टिकल आए थे। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? ऑब्जर्विंग दैट मर्जर ऑफ जायंट ब्लैक होल्स, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन है हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स वर डिटेक्टेड, सेकेंड ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिटेक्टेड, थर्ड है पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस
travel through wormhole was confirmed. थर्ड है it enabled the scientists to अंडरस्टैंड सिंगुलैरिटी। अगर आप पिछले साल का 2018 का मनोरमा ईयर बुक अगर आप निकाल के देखोगे तो मनोरमा ईयर बुक में सिंगुलैरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाल के देख लीजिए, 2019 का है। उसके अलावा हिग्स बोसन पार्टिकल के बारे में भी उसमें आर्टिकल है। अगर आपको ये पता है कि हिग्स बोसन क्या है और सिंगुलैरिटी क्या है तो आप इस आंसर को आसानी से निकाल सकते हो। अदरवाइज अगर आपने पिछले साल का अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होता जब उस समय में ये ब्लैक होल जायंट का ऑब्जर्वेशन जब आया था तो वो अगर आप पढ़े होते तो इट वुड हैव बीन वेरी इजी टू फाइंड आउट द आंसर। बट एनीवेज डू यू रिमेम्बर दैट इन 2 days बिफोर जो आर्टिकल आया था इससे रिलेटेड उसमें भी यही लिखा गया था कि ये जायंट ब्लैक होल्स पे जो पिक्चर्स मिले हैं उससे क्या पता चल रहा है, ग्रेविटेशनल वेव्स वेर डिटेक्टेड। एम आई राइट? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट बी। तो अब इससे क्या पता चल रहा है कि पिछले एक साल में इस तरीके का अगर कुछ ऑब्जर्वेशन पता है रिलेटेड अगर चल गया है या ऐसे कुछ रिसेंट डिस्कवरी हुई है, रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है इन टर्म्स ऑफ origin of the universe से related जो research चल रहा है, whether it is related to black holes, whether it is related to Higgs boson particle, or whether it is related to this wormhole, or whether it is related to singularity। तो आज जाकर आपको क्या करना है, ये Higgs boson particles क्या है ये देखना है, और singularity concept क्या है ये देखना है, और ये wormhole क्या होता है ये आपको देखना है जाकर। उसके अलावा मनोरमा ईयर बुक में एक चैप्टर सेपरेटली उसमें एक टॉपिक ही है, आई गेस स्पेस कुछ तो है, स्पेस स्कैन या स्पेस डायनेमिक्स ऐसे कुछ एक चैप्टर है जो मैंने आपको बताया था पढ़ने के लिए, स्पेस स्कैन शायद, स्पेस स्कैन नाम का एक चैप्टर है, वो आपको पूरा पढ़ना है। और उतना अगर आप पढ़ोगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा इस साल के एग्जाम में यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर? एनी डाउट्स? Yes, sir. Yes, sir. Next, question number 98. Which of the following are the reasons for the occurrence of multi-drug resistance of microbial pathogens in India? तो ये मल्टी ड्रग जो है ना, ये मल्टी ड्रग से रिलेटेड क्वेश्चन देखो 2014 से कंटिन्यूअसली हम पढ़ते आ रहे हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ये प्रॉब्लम क्या है? राइट, सो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज दिस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस? किसी को पता है? न्यूज़पेपर में आता रहता है, बार बार आता रहता ज्यादा एंटीबायोटिक है, स्पेशली ये मल्टी ड्रग एंटीबायोटिक लेने से उसके रेजिस्टेंस हो जाता है पैथोजन। या सो ये आता रहता है न्यूज़पेपर में रिलेटेड टू करने लगता है। यू आर राइट, यू आर राइट। तो ये जब आता है वो किससे रिलेटेड आता है, वो ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड आता है, मल्टी एमडीआर टीबी। आप जाकर आपको देखना है आज एमडीआर टीबी ये क्या है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के कॉजेस क्या हो सकते हैं, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर occurrence of multi drug resistance। मतलब कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जैसे होते हैं कि जो किसी भी ड्रग को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं या फिर उससे वो मतलब बॉडी कैन से वो मर नहीं जाते हैं। मतलब जब भी डॉक्टर आपको कोई एंटीबैक्टीरिया देता है या एंटीबैक्टीरियल जब दिया जाता है तो उससे ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो बैक्टीरिया मर जाए। बट अभी बैक्टीरिया इतने बड़े पैमाने पे पावरफुल हो चुके हैं कि वो बहुत सारे ड्रग्स को क्या नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, और they are not getting what you can see, they are becoming resistant to the drugs। so question ये पूछा गया है कि which of the following are the reasons for the multi drug resistance। ये भी न्यूज़पेपर में बार बार आता रहता है, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होता तो it would have been very easy question। पहले क्वेश्चन पूछा है, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि what are the cause। पहला है genetic predisposition of some people। तो किसी एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से ऐसे होता है क्या? नो। एज फरीन हैज राइटली सेड कि ज्यादा एंटीबायोटिक अगर आप लोगे तो ऑब्वियसली your body as well as what you can say that bacteria will not respond to it। तो ये जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो है, is it a genetic problem or it's a what you can say non genetic problem? नॉन जेनेटिक। Non genetic. तो ऑब्वियसली तो फिर ये पहला स्टेटमेंट क्या होगा? अब सेकंड है taking incorrect doses of antibiotics to cure diseases। yes, this is one of the important reason for multi drug resistance in India। और इंडिया में ये MDR TB बहुत ज्यादा पैमाने पे पाया जाता है कंपेयर टू अदर वर्ल्ड, बिकॉज इंडिया में जो डॉक्टर्स हैं मैक्सिमम डॉक्टर्स अगर जरूरत है या अगर नहीं भी है तो भी एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स इज नॉट व्हाट यू कैन से सजेस्टेड अनलेस एंड अंटिल इट इज नेसेसरी, बिकॉज अदरवाइज अगर आप ज्यादा एंटीबायोटिक्स लोगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपके बॉडी में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बन जाएगा। इज इट क्लियर? सो सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइवस्टॉक फार्मिंग।
लाइफस्टॉक फार्मिंग में अल्ट्रा ड्राई बायोटिक्स यूज करने से भी हो सकता है, बिकॉज अगर वो दूध अगर आप इफ यू आर ड्रिंकिंग द मिल्क from the livestock, then obviously it may, because and again we know we do eat some animals, like for example suppose if such type of antibiotics is given to goat or sheep or poultry, then obviously when we eat, then obviously वो भी वो हमारे बॉडी में चला जाएगा. लास्ट है मल्टीपल क्रोनिक डिसीजेस इन सम पीपल, व्हाट यू कैन से द स्पेस, व्हाट यू कैन से पीपल, अगर मल्टीपल क्रोनिक डिसीजेस अगर इसमें हो जाता है तो ऑब्वियसली मल्टीपल ड्रग्स देने पड़ेंगे डॉक्टर को, मल्टीपल एंटीबायोटिक्स देने पड़ेंगे. अगर मल्टीपल एंटीबायोटिक्स देने पड़ेंगे तो ऑब्वियसली योर बॉडी में डेवलप मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस. तो इतना ही है बेसिक. अगर ये एग्जाम में अगर थोड़ा सा अगर कूल माइंड अगर रखेंगे तो आप आंसर निकाल सकते हो. व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देन? इज देयर एनी ऑप्शन कॉल्ड 2 3 and 4? यस, 2 3 and 4 इज देयर. 1 2 3 4 नहीं है. 1 2 3 सॉरी Sir, answer is B, 2 and 3. 2 and 3. ओके, सो मल्टीपल क्रोनिक डिसीजेस इन सम पीपल, ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ. ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं. तो अभी आप क्या करोगे? अब ये क्वेश्चन से क्या समझ में आ गया आपको? So you will see the recent problems in what you can say, recent problems in the health sector in India. Fine? Check it. Now next question, what is Cas9 protein that is often mentioned in the news? तो Cas9 जो प्रोटीन है वो न्यूज में था, तो किससे रिलेटेड पूछा गया. तो अभी पिछले 2-3 साल से इस तरीके की जो भी टर्म्स मेडिकल से रिलेटेड जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं या न्यूज में है, तो आपको देखना पड़ेगा. अभी तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं, तो सिंपल क्या है, गूगल में सर्च करना है. ठीक है. अ मॉलिक्यूलर यहाँ पर क्या लिखा कि अ मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग. अब यहाँ पर ये भी आप जाकर देखोगे कि ये जीन एडिटिंग क्या होता है. अब यहाँ पर ये जीन साइलेंसिंग है और यहाँ पे ये जीन एडिटिंग है. बी में क्या है, बायोसेंसर यूज्ड इन एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ पैथोजेन्स इन पेशेंट. देन अ जीन दैट मेक्स प्लांट्स पेस्ट रेजिस्टेंट. एंड डी है अ हर्बिसाइडल सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. तो ये Cas9 न्यूज में था, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ था पिछले साल. तो जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा था उनके लिए आसान इजी. तो अभी आपको क्या करना है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, सो दैट जो भी आएगा वो आप आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? A. A. A molecular seizure used in targeting gene editing. Yes, sir. ठीक है. चलिए, next is 100 last question. Which of the following statement is not correct? Hepatitis B virus is transmitted much like HIV. Hepatitis B diseases like अब common diseases in India नाम का एक आर्टिकल मनोरमा ईयर बुक में दिया हुआ है. Did you check it out? मैंने कल बताया था आपको कि कॉमन डिसीजेस इन इंडिया नाम का एक उसमें एक सेक्शन है. तो यू नीड टू नो सम कॉमन डिसीजेस इन इंडिया और उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, राइट. So hepatitis B virus is transmitted much like HIV. Hepatitis B, unlike hepatitis C, does not have vaccine. Globally, the number of people infected with hepatitis B and C viruses are several times more than infected by HIV. Then some of those affected by hepatitis B and C viruses do not show symptoms for many years. So which of the following statement is not correct? पूछा है. तो अब तक जितना भी आपने इन डिसीजेस के बारे में सुना है या फिर जो भी ट्रेंड हमने देखा है कि यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है क्या चेक करता है, तो उससे क्या लगता है कि व्हाट इज द लाइकली चांसेस दैट व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट शुड बी रॉन्ग? A. Yes, sir. It is wrong. Why it is wrong? Why do you think the first is wrong? Hello. Hello. Yes, sir, because hepatitis B does not have vaccine. मतलब नहीं, तो ये B or पढ़ने के बाद ऐसा लगा. answer is B or A? Someone said that A is wrong. So I'm asking why A is wrong. What do you think why A is wrong? Hepatitis B HIV की तरह ट्रांसमिट नहीं होता है क्या? आपको पता है how the HIV is transmitted? What are the ways through which the HIV is transmitted and what are the ways through which hepatitis B is transmitted? अगर आपको पता नहीं है, Sorry, sir, मैं बोलिए सोनाली.
बी कहना था, बी का कहना था, वो ऑप्शन मैंने ए समझा, उसको पढ़ा बी का। ओके ठीक है, तो क्या आंसर क्या Hepatitis है? like hepatitis C does not have vaccine. ओके, so B is the correct answer as per you. ठीक है, यहाँ पर पूछे नॉट करेक्ट। ठीक है, साथ व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? B, sir. B for Bombay. बिफोर बॉम्बे। हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव वैक्सीन। ये रॉन्ग है बिकॉज दोनों के वैक्सीन अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैंने वही इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि लाइकली यहाँ पर क्या लग रहा है कि ये नॉट जो दिख रहा है ना, इससे हमको पता चल जाता है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग होने की चांसेस। क्लियर? Yes. ठीक है, सो दिस इज Yes, अबाउट 2019 क्वेश्चन पेपर, और 2019 में बहुत सारे सवाल आए थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अब आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू? मैंने जितने भी मनोरमा ये रूल बताए वो भी देख लो, जो भी करंट न्यूज में है वो भी मैं आपको भेज दूंगा, उसको कर लो। और रिवीजन आपको जब करना है तो ये जो टॉपिक जिस तरीके से दिए हैं एज पर दैट यू डू द रिवीजन। आई डोंट माइंड इवन इफ यू डूइंग इट फ्रॉम एनी करंट अफेयर मैगजीन, वेदर इट इज विजन और वेदर इट इज जो भी है आपके पास जितने भी अवेलेबल है उससे करो, लेकिन पूरा मत करो। ये जो एरियाज है ना, जिस एरिया में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आपको लगना है तो यू बिकम सिलेक्टेड। सिलेक्टिव मतलब क्या, 200 अगर पेजेस हैं तो पूरा मत पढ़ो, उसमें से ये जितने भी हमने क्वेश्चन देखे हैं पिछले साल में वो क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कुछ नई इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको तो उतना ही करना है आपको वहां से, अलॉन्ग विद सर मनोरमा योर बुक। हाँ सर, मुझे एक डाउट है। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सेक्शन है मिसाइल्स, ये सारी चीजों से रिलेटेड, वो पढ़ना चाहिए क्या? यस, अगर रिसेंटली अगर कोई मिसाइल, रिसेंटली अगर कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी, रिसेंटली अगर कोई सैटेलाइट या रिसेंटली अगर कोई इसरो का मिशन अगर हुआ है तो वो करना है, पुराना नहीं। मतलब 10 साल पहले क्या हुआ था वो नहीं, अगर पिछले 1 साल में या 2 साल में अगर इंडिया ने कुछ इंडिजिनस नई टेक्नोलॉजी अगर बनाई है, सर चाहे इस वो साल तो बहुत सारी है। नहीं नया अगर कुछ बनाया हुआ है तो वो कर देखना है। ओके सर। एग्जाम्पल क्या है जो बहुत कुछ है? सर जो यस, बहुत सारी बताइए इस साल कौन सा नया मिसाइल बनाया है इंडिया ने? सर मिसाइल नहीं, जैसे वो है ना जो अग्नि और ये सब कुछ जो भी। वो इस साल के नहीं है, अग्नि वगैरह जो है बहुत पुराने हैं, बहुत पहले बनाई हुई, टेस्टिंग होती रहती है उसके बाद। हाँ सर, टेस्टिंग होती रहती टेस्टिंग है। तो वो तो हर साल होती रहती है, नहीं उसको बनाया है तो ऑब्वियसली उसको टेस्ट करना पड़ेगा ना। तो टेस्टिंग डजंट मीन ओके दैट सर। इट इज न्यूली क्रिएटेड। तो न्यूज़पेपर में जो न्यूज आती है वो टेस्टिंग की आती है। अगर तो कुछ नया टेस्टिंग का है तो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ नया बनाया हुआ है, नया इस साल में अगर हमने कुछ किया है, चाहे वो इंडिया का हो या फिर अगर सपोज जैसे कि फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था थार्ड रिलेटेड, THEAD थार्ड, ये किससे रिलेटेड पूछा गया था? डिफेंस टेक्नोलॉजी क्रिएटेड बाय यूएस, एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी यस सर। क्रिएटेड बाय यूएस, है ना? तो अगर इंडिया या चाइना या पाकिस्तान ने इसने अगर कुछ बनाए हैं, ऐसा कुछ नया इंडिया ने बनाया, भी बनाया है। हाँ तो अगर बनाया है तो वो देखना है आपको, वो देखना भी है और उसका क्या फीचर है वो देखना है, क्योंकि अभी यस सर। उस तरीके की इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं वो तो अभी आपको समझ में आ गया है, हाउ दे आर फ्रेमिंग द स्टेटमेंट। एम आई यस राइट सर। सौरभ? समझ में आ गया ना? yes sir. ठीक है, यस फरहीन यू आर सेइंग समथिंग। सर जैसे चंद्रयान न्यूज में था, अगस्त में था न्यूज में, तो जुलाई के बाद था, तो सर वो तो पढ़े ना। पढ़ लीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे अपने आप को रिस्ट्रिक्शन मत डालिए कि ये महीने का पढ़ना है और ये महीने का नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको पूरा पढ़ना है, न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स को कभी भी रोकना नहीं। जैसे कि बोला गया था कि ये तो जुलाई के मंथ में एग्जाम हुआ लास्ट ईयर प्रीलिम, तो वो तो उतने तक में उन्होंने फ्रेम कर दिया क्वेश्चन, तो आप बोल रहे हैं कि वो भी पढ़ना है? हाँ तो इसलिए मैं बता पढ़ना रहा है हूँ। वो वाला भी? हाँ क्यों पढ़ना है वो बताता हूँ, क्योंकि अभी पढ़ना मतलब कैसे पढ़ना है, क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो हमेशा यूपीएससी का जो आता है रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो सिर्फ एक बार कहीं दिखाई दी इसलिए क्वेश्चन पूछा है। कोई भी चीज जब रिपीटेडली पूछी जाती है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई चीज आपसे पहले से छूट गई थी, तो हो सकता है ये आने वाले 2 महीने में
वो आपको वापस से न्यूज में मिलेगा, और यूपीएससी ने ऑलरेडी उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम कर चुके हैं। समझ में आ रहा है ना? व्हाई आई एम आस्किंग यू टू रीड इट आउट एंड अगेन यू रिमेंबर, अगर आपको मेंस एग्जाम देना है तो ये पढ़ना ही है, बिकॉज मेंस में जो सवाल आएंगे वो अगस्त सितंबर से आएंगे, बिकॉज अक्टूबर में जब मेंस होने वाला है तो अगस्त सितंबर का जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में। तो अगर ये मिस कर दोगे तो मेंस के सवाल सॉल्व नहीं होंगे आपके। तो आई ऑलवेज से कि रीड द न्यूज़पेपर टिल द एग्जाम डे। सर यू शुड, हेलो यस राशिदा। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। कल मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी हम्म। और पिछले न्यूज़ उसमें भी था कि लम्पसी की स्किन डिसीज है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आप कुछ बता सकते हैं? और एक ड्रग है उसका नाम थोड़ा अजीब है, तो ठीक है। इटोलिज्म करके एक ड्रग है जो हम्म। कोविड की वजह से आया है, हम्म। तो उसका यूज क्या है वो कुछ समझ में नहीं आया। एक लम्पसी डिसीज के बारे में और एक ये चीज, तो दो ऐसी चीजें जो मुझे समझ में नहीं आई हैं। ठीक है, चलिए आप मुझे वो आप भेज उसके बारे दीजिए। में मुझे थोड़ा सा कुछ। हाँ, आप मुझे भेज दीजिए, मैं कल डिस्कस कर लूंगा आपके साथ, कल ओके या सर। फिर मैं और पर्सनली सर आपको मुझे रिप्लाई। ज्योग्राफी, ठीक, और सर मुझे ज्योग्राफी का रिवाइज प्लान और टेस्ट पेपर चाहिए। ये एक बार हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो गया, देन आई विल कम टू ज्योग्राफी। ओके सर। We'll do one thing at a time, right? So now finish with geography. I'm giving you a target, like within 2 days you will finish the science and technology from Manorama yearbook and any sources if you have. After that I will go for geography and I will take a test on science and technology. अब ये जो पिछले साल के जो क्वेश्चन है, जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए गए यूपीएससी ने, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन में फ्रेम करूंगा एज पर द रिसेंट टेक्नोलॉजी जो भी डेवलपमेंट उससे रिलेटेड। So it will be around 25 to 30